Hi friends, today I discussing the topic gout. Actually, what is a gout? Gout is a inflammatory arthritis. Is if person suffering from gout, then persons feel pain. Actually, gout precipitate in such people who intake alcohols, non-veg because it increase the risk of gout. And this type of person belong to actually businessman type. You every night he drink alcohols and non-veg. So businessmen are always at high risk of the gout. And if some common features in gout and must affected part is a great toe and great toe must first metatarsopharyngeal joints is most affected part. Actually, if you think about gout, then mean gout is there are two types of gout. First is acute gout and second is chronic gout. In acute gout and chronic gout, what is the major difference between acute gout and chronic gout? Because both gouts, if patient suffering from acute gout and then suffering from chronic gout, there are different types of drug given to the person. In acute gout different types of drug given, and in chronic gout different types of drug given. But in acute type of gout, we always prescribe NSAID, non-steroid anti-inflammatory drug, but we accept two, mean paracetamol and aspirin. We don't prescribe in any how condition. But in chronic gout, inflammation is not present. So no need, so we don't prescribe NSAID. Only we prescribe those type of drug who decrease the formation of uric acid. That's why. And if some common feature in gout, red white erosions present around the joint, and actually can uric acid crystal present in the this is the synovial fluid. Uric acid crystal present in the synovial fluid. If if we pass light through the polarizing microscope, then we see that all light, then all rays are diverted into the left direction. That means it's a bifringent nature. And we know about crystal shape is needle shape crystal, very small thing. Then we start the topic. Its summary, because it is the articular cartilage. It is articular cartilage. This is articular cartilage. This is articular cartilage, and and this is synovial membrane. This is synovial membrane. ठीक. Actually, if a person suffering from pain, he came to the doctor. He going to the doctor and ask, "I am suffering from pain. mm, I am suffering from pain in great toe." Then doctor give the drug NSAID in first condition. NSAID except paracetamol and aspirin. So we give in acute gout. In acute gout, in acute gout, drug of choice. In acute gout, drug of choice NSAID. We give drug of choice NSAID, but we don't give aspirin and paracetamol. It is not prescribable in acute gout. But we give NSAID to the patient. But after one day, patient again came. He go, I pain does not relieve. Then again we give SAID. SAID. If after pain doesn't relieve, then we at the last end we give colchicine. We give colchi colchicine. If we give colchicine, because in NSAID accept paracetamol and aspirin. Paracetamol it is accept. We don't give. Actually, why we don't give paracetamol and aspirin to the acute gout patient? Because paracetamol have no anti-inflammatory property, so we can't prescribe. No, in aspirin had different property because it increase uric acid formation. So we can't give aspirin because in acute gout, if you want to treat the acute gout, we
our first aim is we decrease uric acid because here uric acid crystal deposition, that's why a person feel pain. Then in first situation we want to decrease uric acid in synovial fluid, that's why we can't prescribe aspirin. एक्चुअली क्या है, अगर कोई पर्सन आपके पास आता है, पर्सन बोलता है भाई मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को ग्रेड 2 में पेन हो रहा है, तो हमने उसको सब NSAID दे दिया, पैरासीटामोल एस्प्रिन तो देना ही नहीं है बिल्कुल। NSAID देने के बाद अगर सही नहीं हुआ तो हमने कहा भाई SAID दे दो, एस्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ठीक। SAID देने के बाद नहीं हुआ तो हम अंतिम एक ब्रह्मास्त्र देते हैं जिसका नाम होता है कोलचिसिन। कोलचिसिन Colchicine is so much efficient. If you give colchicine to the patient and pain it doesn't relieve, then we 100% sure that पर्सन डज नॉट सफरिंग फ्रॉम एक्यूट गाउट। मतलब क्या है, अगर कोलचिसिन देने के बाद पर्सन का पेन रिलीफ नहीं हुआ तो हम 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि पर्सन को तो एक्यूट गाउट है ही नहीं, उसको कुछ और प्रॉब्लम के चलते पेन स्टार्ट हो रहा है। मतलब क्या, कोलचिसिन मोस्ट इफेक्टिव ड्रग and colchicine is most effective drug in acute gout, but why it is not drug of choice? आखिर अगर कोलचिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एक्यूट गाउट में, तो ये ड्रग ऑफ चॉइस क्यों? ड्रग ऑफ चॉइस तो हमने बता दिया कि NSAID है, फिर कोलचिसिन ड्रग चॉइस क्यों नहीं है? सबसे बड़ी बात होती है कि ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है क्योंकि इसका क्या है कि मेजर साइड इफेक्ट होते हैं। अब कोलचिसिन का अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें तो कोलचिसिन के 2 साइड इफेक्ट हैं। ये आपको साइड इफेक्ट मैं लिख रहा हूँ। पहला साइड इफेक्ट होता है ये डायरिया, DIARRHEA, डायरिया। दूसरा साइड इफेक्ट मायोपैथी, मायोपैथी। Because colchicine side effect diarrhea and myopathy. If we in severe condition we prescribe colchicine to the patient in acute gout. So person suffering from diarrhea, some person suffering from myopathy. Myopathy, what means myopathy? Myopathy means muscle fiber doesn't function properly, so it's called myopathy. मतलब जो मसल फाइबर होते हैं वो फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पाते तो उसको मायोपैथी बोलते हैं। तो भाई इसके साइड इफेक्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं आखिर ये कोलचिसिन काम कैसे करता है। आखिर कोलचिसिन को काम करने का तो कोई तरीका होगा। तो कोलचिसिन क्या है, मान के चलिए ये मेरा अपना WBC। सबसे पहली बात करते हैं, ये मेरा है वाइट ब्लड सेल, यहाँ पर वाइट ब्लड सेल है, WBC है। कोलचिसिन क्या करता है, कोलचिसिन का काम क्या करता है कि क्या करता है, रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेनुलोसाइट करता है। मतलब रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेनुलोसाइट का क्या है, इसका मेजर इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम जैसे इसका कोलचिसिन का क्या करता है, रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेनुलोसाइट, रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेनुलोसाइट। एक्चुअली क्या है, कि in synovial fluid uric acid crystal are accumulated, then this crystal gives signal to WBC and WBC get the signal and WBC come cross the synovial membrane and come in the synovial fluid. If WBC go to the synovial fluid, that means inflammation occur. WBC come from outside. If WBC come, then we think that inflammation occur. At first, if you want to prevent the inflammation, our second image, we prevent the WBC who go inside the synovial fluid. Then in this condition, colchicine work. Colchicine inhibit the WBC to go to the synovial fluid. Then actually colchicine makes the WBC drunken। मतलब क्या है कि colchicine WBC को ड्रंक कर देता है। WBC को पता ही नहीं होता है वो कहाँ जाना है, क्या करना है, इसको पता नहीं होता, इसलिए वो अपने यहाँ पर जा नहीं पाता है। अगर यहाँ पर जा नहीं पाता तो इन्फ्लामेशन नहीं होगा। तो हम बात कर सकते, ये तो हो गया। आपको इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स सब ज़्यादा याद नहीं रखना है। सबसे पहले एक्यूट गाइट में ड्रग ऑफ चॉइस NSAID करना है। अगर NSAID से सही नहीं हुआ तो सेकंड हम SAID दे सकते हैं। SAID सही नहीं होता
कोल्चिसिन देंगे, लेकिन कोल्चिसिन देने के बाद हम पेशेंट को बता देंगे कि भैया कोल्चिसिन दे रहा हूँ, साइड इफेक्ट आएंगे, घबराना मत, तुमको डायरिया होगा, मायोपैथी भी हो सकती है, तो घबराने की बात नहीं है। और कोल्चिसिन क्या करता है, डब्ल्यू बी सी मिल फंक्शन है, रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेनुलोस है डब्ल्यू बी सी को रोक देता है, इन्फ्लामेशन नहीं हो पाता है। एक्चुअली क्या है, अब हम बात करते हैं कि एक्यूट गाउट की थी, अब हम बात करते हैं क्रोनिक गाउट। आखिर क्रोनिक गाउट क्या है, अब बात करते हैं क्रोनिक गाउट। अब हम बात करते हैं एक्चुअली क्या है कि पर्सन को एक्यूट गाउट गाउट हुआ, हमने पर्सन को ड्रग दे दिया, आदमी सही हो गया, गाउट सही हो गया, लेकिन यूरिक एसिड लेवल अभी भी ब्लड में अवेलेबल है। यूरिक एसिड तो ब्लड से गायब नहीं हुआ है, सिर्फ वो क्रॉस नहीं किया है, मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाया है, तो सही हो गया है। लेकिन यूरिक एसिड का जो लेवल है अभी भी ब्लड में बहुत ज़्यादा है। तो क्या है कि इस ब्लड में अवेलेबल है, किसी भी पर्सन के ब्लड में अवेलेबल है। पहले उसको एक्यूट अटैक आया था पर्सन को, कुछ दिन बाद एक्यूट अटैक जैसे ही पास हुआ तो पर्सन फिर नॉर्मल हो गया, लेकिन पर्सन ये भूल गया कि मेरा तो एक्यूट गाउट सही हो गया, लेकिन मेरे ब्लड में अभी भी यूरिक एसिड एक्यूमुलेट है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। और बस यही है कि यूरिक एसिड क्रॉस नहीं कर पा रहा है मेम्ब्रेन को, तो पर्सन एसिम्प्टोमेटिक है, पर्सन को कोई पेन नहीं हो रहा है। अगर पर्सन को पेन नहीं हो रहा है, इफ पर्सन एसिम्प्टोमेटिक है, तो देन व्हाई टू ट्रीट। अगर पर्सन एसिम्प्टोमेटिक है तो हमको ट्रीट करने की क्या ज़रूरत है, इसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। पर्सन इज एसिम्प्टोमेटिक टुडे, बट इन टुमारो पर्सन बिकम सिम्प्टोमेटिक, पर्सन हैव हायर रिस्क ऑफ एक्यूट गाउट, पर्सन ऑलवेज एट रिस्क ऑफ एक्यूट गाउट। देन इन दिस कंडीशन, इन क्रोनिक गाउट, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इन क्रोनिक गाउट इन आवर फर्स्ट एम इज डिक्रीज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड हमको ट्रीटमेंट के लिए ऐसी दवा देना है जो यूरिक एसिड को कम कर दे। यूरिक एसिड जैसे ही कम होगा ब्लड में तो हमारा सही हो जाएंगे, सही हो गाउट की प्रॉब्लम हमको सही हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर आपको बात करें, अगर हम आपको बात करें तो ये जो आपको दिख रहा है, आपको जो ये दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यूरिक एसिड बल्ट हो गया यूरिक एसिड का। तो इस पोर्शन को देखिए, यहाँ पर क्या है कि इस पोर्शन में ये क्या यूरिक एसिड सब एक्यूमुलेट हो गया, यूरिक एसिड क्रिस्टल से एक्यूमुलेट हो गया, इसी से बिल्डअप हो गया है। अब यहीं से तो अब प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, यहीं से तो इस पर्सन को पेन स्टार्ट होगा। और दूसरा डायग्राम देखिए, इस पर्सन में भी, दिक्कत यही है। देखिए थोड़ा सा उसको दिस पर्सन ये बोन इरोजन बिकॉज क्या क्या है कि उसमें क्या है कि आपका कार्टिलेज ही कार्टिलेज का इरोजन हो गया, मतलब कार्टिलेज खत्म हो गया, तब बोन पर बोन जैसे ही जाएंगे तब बोन का इरोजन स्टार्ट हो जाता है, वरना प्यूरेट क्रिस्टल इन टॉपर्स में हो जाता है। और साइनोवियल फ्लूइड है, उसी में क्या यूरिक एसिड क्रिस्टल बनकर डिपोजिट होने लगेगा। तो हम ये तो बात हो गया। अब हमको क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि यूरिक एसिड का सिक्रीशन, मतलब यूरिक एसिड कम हो जाए, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर यूरिक एसिड को कम करना हो तो मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है और दूसरा ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है कि डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड, दूसरा है इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। मतलब कि हमारे पास दो तरह के ऑप्शन है, या तो हम फॉर्मेशन को कम कर दें या कि एक्सक्रीशन को बढ़ा दें। एक्सक्रीशन को बढ़ाएंगे, किडनी हो के थ्रू वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, तो अमाउंट बढ़ेगा नहीं, तो प्रॉब्लम सही हो जाएगी। और अगर हम फॉर्मेशन को कम कर दें यूरिक एसिड तो ऐसे भी सही हो जाएगी। तो उसके बात करने से पहले हमको थोड़ा सा एक पॉइंट देखना पड़ेगा कि आखिर यूरिक एसिड फॉर्म कैसे होता है। सबसे पहले क्या है कि यूरिक एसिड जो है, यूरिक एसिड फॉर्म होता है किससे, प्यूरिन, जैसे कि यहाँ पे प्यूरिन है, प्यूरिन और प्रोटीन, जो डाइटरी प्रोटीन्स, हम जो डाइटरी प्रोटीन्स खा रहे हैं उससे यूरिक एसिड बनेगा। इसका
प्रोसेस कैसा है। प्यूरिन एंड प्रोटीन क्या होता है, इसका डिसोसिएट होता है, ये ब्रोक डाउन हो जाता है। ब्रोकिन ब्रोकिन किस में होता है, ये टूट जाता है जेंथिन में। जेंथिन जेंथिन में टूट गया। ठीक। अब जेंथिन, अब जेंथिन में, जेंथिन के बाद क्या होता है, जेंथिन मोटाबलाइज इनटू क्या होता है यूरिक एसिड। अब क्या है कि जेंथिन को मेटाबॉलिज्म के लिए यहाँ पे एक तरह के एंजाइम होता है, इसको बुलाता है जेंथिन ऑक्सीडेज। इसको क्या बुलाता है, जेंथिन ऑक्सीडेज। और प्रोटीन हम लेना मतलब क्या, अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सही हो, कि यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कम हो, तो हमको या तो पहले हमको डाइटरी प्रोटीन कम लेना पड़ेगा, जो कि यूरिक एसिड को के फॉर्मेशन को कम कर देता है। प्यूरिन कम लेना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि जो हमने जो एक ऐसा ड्रग यूज करना पड़ेगा जो कि जेंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देगा। जैसे ही जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिट होगा तो यहाँ पर हमारा यूरिक एसिड नहीं बनेगा। तो हमको दो तरह पर काम करना है। और सबसे पहली बात क्या है कि जो ये अपना है, जो कि एक्सक्रीशन जो है, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड में क्या होता है कि यूरिक एसिड इंसोल्यूबल होता है। अगर हम चाहते हैं कि एक्सक्रीट हो, और तो इसके चलते क्या होता है, अगर यूरिक एसिड के मतलब अनसोल्यूबल होता है, इंसोल्यूबल होता है, और एक्सक्रीशन चाह रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि अगर किडनी में डिपॉजिट हो जाता है, तो ये क्या होता है कि रीनल फेल्यूर भी काउंट कर सकता है, मतलब किडनी फेल हो जाएगा हमारा कि इस कंडीशन में इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। और वैसा ड्रग जो कि इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड करती है, जो यूरिक एसिड को बढ़ाती है, उस ड्रग को बढ़ाता है प्रोबेनिसिड। प्रोबेनिसिड प्रोबेनिसिड और एक है लीसिन्यूरान। ये क्या करते हैं, एक तरह के मतलब अपना रीनल फेल्यूर भी देता है। इसका रिस्क है रीनल फेल्यूर का, क्योंकि ये हम यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करना है, यूरिक एसिड इंसोल्यूबल होता है, तो ये भी चांस है कि किडनी में जाकर एक्यूमुलेट होता है, किडनी में रीनल फेल्यूर काउज कर देती है। ये दोनों ड्रग हैं ये जो यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन की। तो क्या है इसमें, इसमें इसमें क्या है कि हम क्या बोले कि जेंथिन ऑक्सीडेज है, तो हम क्या करेंगे, कोई कैसा ड्रग यूज करेंगे जो जेंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करेगा। और जेंथिन ऑक्सीडेज को तो भाई एक ही ड्रग यूज इनहिबिट कर सकता है, उस ड्रग का नाम है आलोप्यूरिनोल। मतलब वैसे फनी बुलाता है एलो प्यूरिनोल। एलोप्यूरिनोल क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। जैसे ही जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिट होगा, यूरिक एसिड नहीं बनेगा, और यूरिक एसिड नहीं बनेगा तो हमारा क्रोनिक गाउट सही हो जाएगा। तो एलोप्यूरिनोल को हमने क्या किया, एडवाइस कर दिया एज ए ड्रग ऑफ चॉइस। वी प्रीफर इन क्रोनिक गाउट एलोप्यूरिनोल इज प्रिस्क्राइब एज ए ड्रग ऑफ चॉइस। और क्या है कि कुछ कुछ पर्सन ऐसे होते हैं ना कि जिनको प्रॉब्लम होती है, कि मतलब किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है। अगर प्यूरिन से एलर्जी होती है, मतलब एक तरह का प्यूरिन ही है, मतलब करने बाद तो प्यूरिन से एलर्जी होती है। अगर और एलर्जी वाले पर्सन को, एलर्जी वाला जो कोई पर्सन है उसको हम एक ही यूज करते हैं ड्रग, फेबुक्सू। फेबुक्सू मतलब क्या, ये भी एक तरह का ड्रग ऑफ चॉइस है। वो मतलब फेबुक्सोस्टेट ड्रग ऑफ चॉइस इफ ए पर्सन एलर्जी टू प्यूरिन। अगर कोई पर्सन को एलर्जी है प्यूरिन से, तो यहाँ पे हम एलोप्यूरिनोल नहीं देंगे, उसको फेबुक्सोस्टेट देंगे, एस्टेट देंगे। और और दूसरी बात है कि हमने जो ये ड्रग बताया जो कि रीनल फेल्यूर वाले ड्रग, इस प्रोबिनिसिड और लिसिनुरेट, इसको हम देने के बाद पेशेंट को हम ये भैया बोल देंगे कि भैया तू पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना, क्योंकि ये क्या करता है किडनी में एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियेंगे, ये चांसेज है कि ये सब मेटाबोलाइज होकर के यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए। तो प्लेंटी ऑफ वाटर इसके साथ लेना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी बात है, एक एक आपके मन में भी एक चीज़ आ रहा होगा कि हम एक तरफ हम बोल दिए कि हमको यूरिक एसिड कम करना है क्रोनिक गाउट में। दूसरे हम क्या बोले, दूसरे हम बोलते हैं कि हमको मतलब ऐसा ड्रग देना है कि जो
जो यूरिक एसिड को आने ही नहीं, मतलब इन डब्ल्यूबीसी को आने ही नहीं दे साइनोवियल फ्लूइड में, जबकि इन्फ्लामेशन नहीं होगा, तो ऐसा हम ड्रग प्रीफर करते हैं। लेकिन क्या है कि अब ऐसा ड्रग जो यूरिक एसिड को कम करती है, वो क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? मतलब जो डिक्रीज यूरिक एसिड ड्रग ड्रग क्या है, कंट्रा इंडिकेटेड है। कंट्रा इंडिकेटेड है किस में? एक्यूट गॉट वाई? एनी ड्रग हु डिक्रीज द यूरिक एसिड हु इज कंट्रा इंडिकेटेड इन द एक्यूट गॉट। बाकी आखिर क्यों एक्यूट में कंट्रा इंडिकेटेड है, तो इसके पीछे रीजन है, आपके पीछे साइंस है। देखिए क्या है, ये अपना क्या है, पहला है, मतलब हम ज्वाइंट्स बनाने हैं, पहले ज्वाइंट्स अच्छा बन नहीं रहे हैं, ठीक, इसको अच्छा से कर दें। ये तो अपना ये वाला पोर्शन हो गया, ये तो ये हो गया, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली क्या है, यूरिक एसिड यहाँ पर है, एक यूरिक एसिड है। Actually, uric acid not permeable. In normal condition, uric acid not permeable. But in acute attack, यूरिक एसिड इज परमिएबल। क्या होता है कि नॉर्मली यूरिक एसिड नहीं जा सकता भाई, सेनेवियल मेम्ब्रेन क्रॉस ही नहीं कर सकता। लेकिन जब हम बात करें एक्यूट अटैक आ जाता है, तो यूरिक एसिड को क्रॉस कर जाता है उसके मेम्ब्रेन को। तो हमको क्या है, हम हम जो ड्रग यूरिक एसिड को कम करने वाला ड्रग क्यों नहीं हम प्रीफर करेंगे? उस पर्सन को एक्यूट गाउट था, क्यों नहीं प्रीफर करेंगे? इसके पीछे लॉजिक है क्या, देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर क्या है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, ठीक, ये ब्लड वेसल्स है। यहाँ पर अपना क्या, यहाँ पर टिश्यू है, यहाँ पर मेरा कोई टिश्यू है, ये कोई टिश्यू है। बात क्या होता है कि ये सब जो ड्रग है जो यूरिक एसिड को कम करते हैं, कहाँ से कम करते हैं भैया? ये यूरिक एसिड को सिर्फ ब्लड में से कम करते हैं, ब्लड में से कम करते हैं। यहाँ पर यूरिक एसिड उतना ही रहता है, जो टिश्यू में से इनको कोई मतलब नहीं, टिश्यू में तो ये बढ़ा ही रहेगा, टिश्यू में से कम नहीं करते हैं सब ड्रग। एलोप्रिनोल वनली डिक्रीज यूरिक एसिड इन द ब्लड नॉट इन द टिश्यू, टिश्यू सो डिक्रीज नहीं करता है। तो हम इस कंडीशन में सोच सकते हैं कि भाई यहाँ पर यूरिक एसिड का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो यूरिक एसिड क्या होता है, मूव कर जाएगा। एक्यूट गाउट का अटैक था, एक्यूट गाउट के लिए तो परमिएबल होता है, तो एक्यूट गाउट में जैसे ही हमने दे दिया, अगर एक्यूट गाउट वाले पेशेंट को एल्यूप्रिनोल गलती से भी दे दिया, तो क्या करेगा कि टिश्यू में तो यूरिक एसिड को इफेक्ट नहीं करेगा, ब्लड में जाकर यूरिक एसिड को कम कर देगा, जिसके चलते एक मतलब यहाँ पे यूरिक एसिड ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो दोनों के बीच डिफरेंस पैदा हो गया, जिसके चलते क्या होगा, यूरिक एसिड का मूवमेंट यहाँ पाएगा। जैसे ही यूरिक एसिड अब पहले से ज़्यादा पहुँचने लगे सैनोवियल फ्लूइड में, अब क्या होगी, एग्रावेट कर देगा सिस्टम को, एग्रावेट कर देगा, यूरिक क्रिस्टल ज़्यादा बनने लगेगा। मतलब क्या भैया, हमने क्रोनिक गाउट में बताया था कि एलोप्रिनोल देने का, अगर आपने एक्यूट एलोप्रिनोल को एक्यूट गाउट में दे दिया, दे एग्रावेट द एक्यूट गाउट प्रॉब्लम, एक्यूट गाउट के प्रॉब्लम को एग्रावेट कर दे और ज़्यादा क्रिटिकल कर देगा। ठीक है, हमने तो इतना बात कर लिया, लेकिन हम एक बात भूल गए कि यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है किस में, एलेंटोइन में, एलेंटोइन। आखिर एलेंटोइन में क्या होता है, ये हमारे अंदर नहीं होता, ये बर्ड्स के अंदर होता है। बर्ड्स क्या करते हैं, इसमें एक एंजाइम होता है यूरिकेज, एक एंजाइम यूरिकेज होता है बर्ड के अंदर। यूरिकेज क्या करता है, यूरिक एसिड को कन्वर्ट करता है एलेंटोइन में। तो इसमें सबसे पहली बात है कि हम कुछ ऐसा ड्रग भी बना सकते हैं फ्यूचर में, यार बना सकते हैं कि जो क्या करता है कि हम यूरिकेज की तरह काम करें। अगर यूरिकेज की तरह हमारे अंदर भी काम करने लगे, तो क्या होगा, यूरिकेज कोई ड्रग, तो हमारे अंदर भी यूरिक एसिड स्टोर रहता है, तो उसको मेटाबोलाइज करके एलेंटोइन में कन्वर्ट कर देगा, मेटाबोलाइज करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगा। तो ये हमारे लिए क्या है, कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है। तो हमको, तो ये एक्चुअली वैसे बर्ड्स में होता है, लेकिन ये मतलब ऐसा ड्रग होते हैं जो कि क्या करता है कि यूरिक एसिड के मेटाबोलाइज कर देता है और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये इस टाइप का ड्रग होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपको इसमें पता चल ही गया होगा सब कुछ। और इसमें अब इसमें इतना ही है। अब आपको यहाँ पर एक तरह की समरी आपको दे देता हूँ। हमेशा ये जो इरोजन हुआ है, आपको इसको देखना है कि यहाँ पे यही यही इसी टाइप का गाउट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। गाउट है, ये भी गाउट है, यहाँ प्रॉब्लम हो गया पर्सन को।
आपको एक्यूट गाउट में आपको हमेशा जानना है कि यूरिक एसिड जो कम करने वाले ड्रग को कभी देना ही नहीं है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं, ये तो इतना हो गया गाउट का। अब गाउट में इसका समरी बना देते हैं। ठीक, गाउट में एक्यूट, अगर एक्यूट होगा तो ड्रग ऑफ चॉइस NSAID। ठीक, क्रोनिक, क्रोनिक में ड्रग ऑफ चॉइस एलोप्यूरिनो। ये इम्पोर्टेंट है, में पता होना चाहिए। इसमें तो आपको पता है आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये तो एनाटॉमी वाला पोर्शन है। और ये फेब्रियो स्टेट के बारे में देना है कि एलर्जी वाले पेशेंट में देना है, जिसको एलर्जिक पेशेंट, एलर्जिक पेशेंट फ्रॉम प्यूरिन। अगर किसी भी पेशेंट को प्यूरिन से एलर्जी है तो उसको फेविक्सोएस्टेट हम प्रीफर करेंगे, नहीं नहीं तो हमको एलोप्यूरिनोल ही देंगे। ये अब इतना था।